The fun they had. Before you read. You may be knowing why we read before you read because it gives us the theme of the story. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. जिस कहानी को हम पढ़ेंगे की शुरुआत भविष्य के लिए की गई है जब पुस्तकें और विद्यालय जिन्हें हम जानते हैं संभवतः उनका अस्तित्व नहीं रहेगा तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। नीचे दिया गया डायग्राम आपको कुछ राय प्रदान कर सकता है। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. जोड़े बनाकर अपने विद्यालय के विषय में 3 पसंदीदा वस्तुओं और विद्यालय के बारे में 3 चीज़ें जिन्हें आप परिवर्तित करना चाहेंगे पर डिस्कशन कीजिए और उन्हें लिखिए। Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? क्या आपने कभी टेलीविज़न अथवा कंप्यूटर के पर्दे पर शब्दों को पढ़ा है? क्या आप ऐसे वक्त की कल्पना कर सकते हैं जब सभी पुस्तकें कंप्यूटरों पर होंगी और कागज़ पर छपी हुई कोई भी पुस्तक नहीं होगी? क्या आप ऐसी पुस्तकों को बेहतर पसंद करेंगे? Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today, Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इस विषय में भी लिखा 17 मई 2157 पृष्ठ पर शीर्षक अंकित था। उसने लिखा, आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिली। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वह एक छोटा बालक था उसके दादाजी ने उसे बताया था कि एक वक्त था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थीं। वे पृष्ठों को पलटते थे जो कि पीले और तहदार थे तथा उन शब्दों को पढ़ना जो गतिमान प्रतीत होने के बजाय उनके पर्दे पर होने की कल्पना की जाती थी यह भयंकर परिहासपूर्ण था। और फिर जब वे पृष्ठ को पुनः पलटते थे तो उस पर यथावत शब्द होते थे जिन्हें वे पहली बार में पढ़ लेते थे। "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." "Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." "What's it about?" "School." टॉमी ने कहा, आगे बढ़ो, कितना व्यर्थ कार्य है। मेरा अनुमान है जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे आप इसे तुरंत फेंक देंगे। हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर अवश्य लाखों पुस्तकें मौजूद होंगी। अभी इस पर बहुत आ सकती हैं। मैं इसे नहीं फेंकना चाहूँगा। यही बात मेरे साथ, मार्जी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और उसने अब उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास थी क्योंकि वह 13 वर्ष का था। उसने कहा, यह तुम्हें कहाँ मिली? मेरे घर में, उसने बिना देखे संकेत किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। टाँड़ में। यह किस विषय पर है?
विद्यालय पर। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent to the county inspector. मार्जी तिरस्कार युक्त थे। विद्यालय विद्यालय के विषय में लिखने को क्या है, मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ। मार्जी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी, परंतु वह पहले की अपेक्षा अधिक घृणा करती थी। यांत्रिक अध्यापक मीन्स कंप्यूटर भूगोल पर परीक्षा लिए जा रहा था और वह तब तक खराब से खराब किए जा रही थी जब तक उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सिर नहीं हिलाया और क्षेत्र निरीक्षक को नहीं बुला भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't now know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put the homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा आदमी था जिसके पास औजारों का बॉक्स था जिसमें डायलें तथा तारें थीं। वह मार्जी की ओर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, तब अध्यापक को अलग ले गया। मार्जी को आशा थी कि वह नहीं जानता होगा कि उसे दोबारा कैसे एक साथ व्यवस्थित किया जाए, परंतु वह जानता था कि कैसे ठीक करना है। 1 घंटे के उपरांत पुनः विशाल, काला तथा बदसूरत हो गया। एक बड़े पर्दे जिस पर सभी पाठ दिखाई दे रहे थे तथा प्रश्न पूछे जा रहे थे, वह इतना बुरा नहीं था। मार्जी जिस भाग से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह एक दी गई जगह थी जहाँ पर वह अपना गृह कार्य व परीक्षा प्रश्न पत्रों को रखती थी। उसे हमेशा उन्हें पंच कोड, इट इज़ अ कोड लैंग्वेज, में लिखना पड़ता था। जब वह 6 साल की थी तथा यांत्रिक अध्यापक अंकों की तत्काल गणना कर देता था। द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and petted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector were geared a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory." And he petted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" कार्य समाप्त करने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया तथा मार्जी के सिर को थपथपाया। वह उसकी माँ से बोला, "श्रीमती जोन्स, यह नन्ही बच्ची का दोष नहीं है। मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी सीमित कर दिया गया था। ये चीज़ें कई बार घटित हो जाती हैं। मैंने उसे औसतन 10 वर्षीय बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। वास्तव में उसकी उन्नति की संपूर्ण शैली बिल्कुल संतोषजनक थी।" और उसने दोबारा मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी निराश थी। वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापक को अपने साथ दूर ले जाएंगे। एक बार वे टॉमी के अध्यापक को भी लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतया खाली हो गया था। अतः उसने टॉमी से कहा, "कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा?" Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago.
he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher. But it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. मार्जी ने उसकी ओर तीव्र नज़र डाली, क्योंकि मूर्ख यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं था। यह प्राचीन प्रकार का विद्यालय था जो सैकड़ों दर सैकड़ों साल पुराना था। उसने श्रेष्ठ तरीके से शब्दों का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, शताब्दियों पूर्व। मार्जी का दिल दुखा। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है कि उनके यहाँ इतने समय पूर्व किस प्रकार का विद्यालय था। उसने कुछ समय के लिए अपने कंधे के ऊपर से पढ़ा, फिर कहा, फिर भी उनका एक अध्यापक होता था। निश्चित रूप से वो एक अध्यापक रखते थे, परंतु यह एक नियमित अध्यापक नहीं था। यह एक आदमी था। एक आदमी? एक आदमी का अध्यापक कैसे बन सकता था? अच्छा, वह लड़के व लड़कियों को चीज़ों के विषय में बताता था और उन्हें गृह कार्य देता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building, and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. एक आदमी पर्याप्त फुर्तीला नहीं है। निश्चित रूप से वह है। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक। और वह लगभग सब कुछ जानते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ। मार्जी इस पर झगड़ने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं अपने घर में एक विचित्र आदमी से नहीं पढ़ना चाहूँगी। टॉमी ठहाके के साथ चिल्लाया, मार्जी, तुम बहुत अधिक नहीं जानती हो। अध्यापक घर में नहीं रहते। उनका एक विशेष घर होता है और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं और सभी बच्चे एक एक चीज़ सीखते थे, निश्चित रूप से अगर उनकी आयु एक समान है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? परंतु मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की जिन्हें वह पढ़ाता है कि मस्तिष्क के साथ सामंजस्य करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को भिन्न तरीके से पढ़ाना होता है। तब वे ठीक उसे उस तरीके से नहीं करते थे। यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो मैं पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने इसे पसंद नहीं किया, मार्जी ने शीघ्रता से कहा। वह उन मनोरंजक विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने उसे आधा भी नहीं समाप्त किया था जब मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी, विद्यालय। मार्जी ने देखा, अभी नहीं माँ। अब श्रीमती जोन्स ने कहा, और टॉमी का भी संभवतः समय हो गया है। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं विद्यालय के उपरांत आपके साथ पुस्तकों को कुछ और पढ़ सकता हूँ? Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up, and it said,
Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. हो सकता है उसने लापरवाही से कहा। वह धूल भरी पुरानी पुस्तक को कांख के नीचे दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी विद्यालय कक्ष कंप्यूटर कक्ष के अंदर चली गई। वह उनके शयन कक्ष के सामने था तथा यांत्रिक अध्यापक तैयार था और उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। वह शनिवार और रविवार के अलावा प्रतिदिन हमेशा उसी समय पर तैयार रहता था, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि नन्ही लड़कियाँ बेहतर सीखती हैं यदि वे नियमित समय पर पढ़ें। स्क्रीन चमकने लगी थी और इसने कहा, आज का अंकगणित का पाठ सम भिन्नों के जोड़ पर आधारित है। कृपया उचित खाली जगह में कल का गृह कार्य लिख लें। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. Van weird fractions, half and 1/4. Margie was thinking about how the kids must loved it in the old days. She was thinking the fun they had. मार्जी ने चैन के साथ ऐसा किया। वह पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। पड़ोस के सभी बालक विद्यालय प्रांगण में हंसते हुए तथा चिल्लाते हुए विद्यालय कक्ष में इकट्ठे बैठते थे। दिन की समाप्ति पर एक साथ घर चले जाते थे। वे एक जैसी चीज़ें सीखते थे, अतः वह गृह कार्य में एक दूसरे की मदद करते थे और इसके बारे में बातचीत करते थे। और अध्यापक एक आदमी थे। यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। जब हम भिन्नों, हाफ एंड 1/4 को जोड़ते हैं, मार्जी बीते दिनों के बच्चों को इससे किस प्रकार प्यार करना चाहिए था के विषय में सोच रही थी। उन्होंने जो मनोरंजन किया था के विषय में वह सोच रही थी।